Good morning, everybody. Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I am live, and I'll be delivering a lecture on LEG. LEG as a concept. I know many of you are watching me right now, and those who will watch me later on this lecture on YouTube, let me inform them that we have started all the Zoom classes and Google classes also. They are live lectures. You can take admission. You can also contact me for highly updated and very popular notes and for all the 10 units of English literature. And I'm present after, I think, 2-3 months, after that exam of NET. I have qualified that this exam also once again. This is my 15th NET. Good morning, good morning. Now I'm 15 time NETs and 3 JRF and 2 MPhil. Many people criticize me for this, like, why are you appearing again and again? But I have my own explanations, okay? And you have all the rights to criticize me, clear? I have my own reasons to come live today, because I have been getting many requests from the students, because as you know that the effect of lockdown is still, it prevails. Lockdown has really taken toll on the lives of particularly the students category and the people who are associated with this private field of education. तो मैंने सोचा कि ठीक है, रेगुलर एडमिशन्स हो रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड 2 बैचेस ऑफ नेट, और पिछली नेट्स का रिजल्ट भी मेरे को आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ेगा. मोर देन 15 स्टूडेंट्स ने हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन में से क्वालिफाई किया है. उसमें से JRF भी हैं और नेट भी है. और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो टेलीग्राम चैनल दे रखा है, और जो स्टूडेंट मुझे बाद में देखेंगे वो अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए. और उस पर मैंने सारी डिटेल्स डाल रखी है. फेसबुक पे भी डाली थी, और यूट्यूब पे मेरे पास वीडियो बनाने की कैटेगरी टेक्निक नहीं है ज़्यादा, and I'm not associated with anybody like all my competitors. They are very good at making videos and all. I'm not that much computer savvy, so मैं डायरेक्ट ये जो लाइव क्लास लेता हूँ इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ. इतना तो मुझे आता है. इसमें भी some of my students, they have helped me कि कैसे YouTube से जो लाइव क्लास है उसको किस तरह से डाउनलोड करके और YouTube पे अपलोड किया जा सकता है. So I'm taking help from these of my some of my students. अब डायरेक्ट जैसे कि मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने सीखा है बाकी लोगों से कि अपने बारे में भी लोगों को बताओ, ताकि उनको पता चले कि भाई मार्केट में सेल्फ प्रोक्लेमेशन के अलावा भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो डेडिकेटेड है अपने फील्ड के लिए, एंड दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू अपलिफ्ट द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ आवर स्टूडेंट्स. ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी. फटाफट से आप आ जाइए, सभी लोग लाइव क्लास अटेंड कीजिए, अपनी एक नोटबुक साथ में रखिए, और विजिट माय वेबसाइट www.mukeshparikh.com और www.englishcosmos.org. वहां पे आपको मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां मिल जाएंगी. ठीक है, अब चलते हैं LEG एज अ टॉपिक. मैं हिंदी में भी बोलूंगा बीच बीच में, बिकॉज मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती हैं स्टूडेंट्स की कि डोंट कंटिन्यू इन इंग्लिश ओनली. दो आई विल इंसिस्ट दैट all our students, whether they belong to any area of India or say आजकल मुझे out of India के लोग भी बहुत दिखते हैं, so just keeping them in mind. But जो हमारे neighboring countries हैं, they all understand Hindi, but suppose somebody doesn't understand, so I keep switching over from Hindi to English and English to Hindi. LEG, when we study it as a genre, we see that LEG, एक तो some students feel that any topic, if I touch it here on Facebook or say YouTube, should be always exam oriented. That is okay, but don't you think like exam questions are not in in somebody's mind when he's delivering a lecture? So I think I request
आप सभी स्टूडेंट्स को लेक्चर अटेंड करना चाहिए ये सोच करके कि वी आर इंप्रूविंग अवर नॉलेज, और फिर वो जो नॉलेज है वो ऑटोमेटिकली एग्जाम में मटीरियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी रहूंगा, बट यू नो आई विल ऑल्सो ट्राई टू नो मोर अबाउट द सब्जेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली यू ऑल आर गोइंग टू बी फ्यूचर प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया, इजंट इट। तो एलईजी के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक तो इंडियन कल्चर में एलईजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। ये भी एक कारण है कि जब मैं अपनी क्लासेस में बताता हूं कि भाई एलईजी कैसे पढ़ते हैं, एलईजी कहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता मेरी क्लास में कि मैं एलईजी सिलेबस में है, मान लीजिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं या मेरे करियर में जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, सो इट वाज अ फैक्ट दैट मैंने जैसे एलईजी उठाई अपने हाथ में और मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। या सपोज आई टॉक अबाउट द राइटर लाइक टॉमस ग्रे है, लिसिडस लिखने वाले हमारे मिल्टन है, शेली की एडोनिस है, या कि जो और भी कई राइटर्स हैं जिनकी एलईजीज हम लोग पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है। एलईजी एक तो यू शुड बी यू शुड हैव दिस नॉलेज दैट एलईजी इज नॉट देयर इन द इंडियन कल्चर, पर्टिकुलरली हिंदूज में तो नहीं है ये कल्चर। लेकिन ये भी मत सोच के चलिए कि मरने वाले के ऊपर या जो हमसे छूट गया बिछड़ गया उसके ऊपर हम लोग मौन नहीं करते हैं। हम मौन करते हैं। कैसे मौन करते हैं? आपने देखा होगा दैट इफ समबडी डाइज तो क्या होता है, उसके घर में बैठक होती है, लोग आके बैठते हैं एंड देन दे टॉक अबाउट the better things or the memorable things of that person who has died, isn't it? लेकिन आपने देखा है sometimes because women have been given the liberty to express themselves emotionally more than in this patriarchal culture throughout the world. So women उसमें इंग्लिश कल्चर तो ऐसा है जिसमें हम लोग जब मूवीज देखते हैं और लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनके कल्चर में हमें शायद ही कोई ऐसा नॉवल देखने को मिलता है जिसमें लाउडली कोई औरत रो रही है, अपार्ट फ्रॉम टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड जो पोएम है उसमें, और W.B. यीट्स की जो पोएम्स हैं कुछ जिसमें ही हैज शोन वेलिंग वुमेन, ओके। बट मैं कहना चाहता हूं कि औरतें जब वेल करती हैं, वेदर वॉट एवर कल्चर दे बिलोंग टू, तो आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, वो उस डिसीज्ड पर्सन जिस आदमी की डेथ हो गई है, जिसकी भी डेथ हुई है, उसके गुणों को याद करते हुए लंबा विलाप करती हैं। आप यस और नो लिख के बताइए, मुझे पता चले आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कि भाई आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। आपने कभी देखा होगा भाई जेंट्स तो जो है वो बाहर बैठ जाते हैं एंड दे आर दे वियर अ मास्क, नॉट एग्जैक्टली अ मास्क बट दे हैव अ facade that they are very somber and serious and they are sitting like that and they pretend sometimes like they are very very serious, but actually they wanted to cry, they want to cry many times but उनको allow नहीं है because of certain unwritten rules of patriarchy, ठीक है। लेकिन लड़कियां, आपको पता है या औरतें कैसे रोती है, जैसे मैं राजस्थानी हूं तो मैंने बहुत क्लोज में जब किसी डेथ पे गया तो जैसे मुझे आता देख करके, और मान लीजिए मेरी एज का बच्चा उनका मरा है तो वो मुझे गले से लगा के रोएगी कि, और वो थोड़ा सा तीखी आवाज में बोलेगी, वो बहुत अच्छा था, तेरा दोस्त था, तो क्यों चला गया, you just look at this, and then if nobody stops her, nobody saves her, from these extreme emotions, तो फिर वो बोलती चली जाती है वो औरत और वो गाती है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने बचपन में हमारे गांव में, मैं जब छुट्टियां मनाने राजस्थान आते थे हम जम्मू कश्मीर से, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ और मेरे ननिहाल जो है वो राजस्थान में है, तो हम लोग जम्मू कश्मीर में पढ़ा करते थे कठुआ के अंदर। तो मैंने देखा कि जब हम छुट्टियों में आते हैं और मान लो किसी की डेथ हो गई है या जैसे कोई अकाल मृत्यु हो गई है, सांप काटने से डेथ होती थी मैंने सुना ज़्यादातर, या किसी की डिलीवरी में डेथ हो गई, तो बहुत हुजूम उनके यहाँ बैठने के लिए लोग आते थे टू शो देयर सिंपैथी विद देम, है ना। तो उसमें वो औरतें क्या करती थी, ग्रुप में कुछ रोते हुए आती थी। और रुदाली का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, ये राजस्थानी कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ औरतें प्रोफेशनल होती हैं जिनको बिठा दिया जाता है और वो उस आदमी के बारे में बहुत ज्यादा छाती पीट करके और रोती हैं। तो ये जो मैंने लेक्चर दिया, ये दिया कि भाई इन इंडिया we have a concept of elegy where it is more of a kind of functional use of the vocal cords and tears, and especially उसमें औरतें अपना मुंह भी ढक लेती है। पंजाबी में इसको स्यापा बोलते हैं, कई बच्चे गाने में सुनते होंगे स्यापा, लेकिन स्यापा का मतलब क्या होता है, रोना जोर जोर से, ठीक है। और उसमें उस आदमी के गुणों का वर्णन कर। सो दिस इज माई वेरी द इनिशिएशन इनटू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एलिजी, लाइक व्हाट इज एन एलिजी। अब आते हैं इंग्लिश में।
इंग्लिश में जो एलिजी का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग अपनी कॉपी तैयार रखिए और लिख सकते हैं कि एक्चुअल में ये एक सीरियस रिफ्लेक्शन है किसी डेड आदमी की डेथ के ऊपर, ठीक है। और वो जो एलिजी होती है उसमें एज सच वी डोंट हैव अ डेफिनेशन, ठीक है, बट if somebody writes some words, some poem and before the cremation, मतलब उस आदमी का दाह संस्कार इस्लामिक कल्चर में और क्रिश्चियन कल्चर में जब उसका डेड बॉडी ले जाया जाएगा तो उससे पहले some people they have some written material and they read it in front of the dead body, okay, उसको वो लोग एलिजी बोलते हैं। so that is a textual momentalizing, आप इसको लिख लीजिए, it's a so elegy can be said like it is a textual momentalizing, okay, and strictly a lament for the dead, okay, so they keep talking about the dead person in that either a poem or a kind of an essay. Second important point from my side is that it is a Greek, the term elegy has come from the Greek term elegia, Elegeia, okay, elegia, which means lament. So that can be a question in your exam, okay, because some of you always think like we should be taught only for the exam, okay, और आपने देखा होगा कि केवल एग्जाम के लिए पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। एग्जाम इसलिए क्लियर होता है क्योंकि हम नॉलेजेबल हो तो एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं वीडियो के बिल्कुल बीच में फिर से बोलना चाहूंगा, हमारी नेट की क्लासेस जूम और गूगल पे स्टार्ट हो चुकी हैं और लाइव हैं वो प्लेटफॉर्म्स, बिल्कुल आप उसको ज्वाइन करें, सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उसमें। और मैंने बताया जैसे रिजल्ट अभी के हमारे यहाँ से 15 स्टूडेंट्स के आसपास क्लियर हुए और अभी भी बीच बीच में मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है ये आंकड़ा 20-25 तक पहुंच जाए, ठीक है। सो एलिजी मैंने बता दिया, इट हैज अ ग्रीक ओरिजिन, ठीक है, और इसके अंदर एलिजी कपलेट से ये स्टार्ट हुई थी, लिख लीजिए दैट इन द वेरी बिगिनिंग देयर वर कपलेट्स। कपलेट्स का मतलब होता है दोहा, ठीक है, और एक वाइड रेंज हुआ करती थी, डेथ हो सकती है, लव हो सकता है, वॉर हो सकता है। So you should be in the knowledge, you should have this knowledge that elegy is not only for death, okay, but yeah, you can commemorate someone. आपने नोटिस किया है हम बहुत सारी गजल सुनते हैं, you must have noticed it that the ghazal has already been declared as a somber genre, in the music, the world of poetry and all. तो प्रणाम विजय जी ने अभी जेआरएफ क्लियर किया है और उन्होंने कहा कि मैं आपके केवल वीडियोस देख करके ही मैंने जेआरएफ क्लियर कर लिया। ये इनका बड़प्पन है, इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। आज ये हमारी क्लास में आकर के और बच्चों को हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करेंगे हमारी लाइव क्लास में आकर के। सो इस वीडियो के बाद में यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर विच आर ऑलरेडी गिवन देयर एंड मैं इनसे अपने स्टूडेंट्स की बात इसलिए कराऊंगा क्योंकि इनकी आईसाइट में भयानक प्रॉब्लम है, ही कांट रीड प्रॉपरली एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन हैज क्वालिफाइड नेट एंड जेआरएफ, दैट इज समथिंग अ ग्रेट 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 थिंग। तो आप लोग जुड़िएगा हमसे और हम देखेंगे कि किस तरह से ऐसे स्टूडेंट हैं दुनिया में जो मतलब हाँ आप और हमसे कई गुना ज्यादा मेहनती हैं, और अगर हम थोड़ा मोटिवेट हो जाएं उन लोगों से तो कितनी अच्छी बात रहेगी। सो आई एम सो सॉरी, आई डाइग्रेस्ड, लेट अस कम बैक। सो मैं क्या बात कर रहा था, मैं गजल की बात कर रहा था। व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट गजल, क्योंकि आपने देखा होगा ना गजल में somehow there is something sadness is there, okay, somebody is in the heart crying for reciprocated love either, or say there are certain restrictions from society and there is no consummation of the love and all, clear. So पता होना चाहिए कि elegy जो actual में एक term है, that is just lament. Now we can associate it with death also, we can associate with war also, we can associate it for love also, okay. So this is third point। आप लिखिए कि Latin elegy जो है, Latin आपको पता है that was the language of the ancient Rome, okay, Roman literature। So जो Latin elegy थी उसके अंदर there were two other more elements were present and that was write down, it was erotic। Now you will be surprised that how can elegy be erotic। erotic का मतलब होता है थोड़ी कामुकता लिए हुए। नमस्कार अंगामित जी, नमस्कार, प्रणाम। So and Latin में it had a mythological setting। तो आपको मैंने 2-3 बातें बता दी हैं जिसमें से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और एक पॉइंट आप लिख लीजिए कि ग्रीक और रोमन पोइट्स जो थे वो
एलिजी में दे वर क्वाइट विटी, लिख लीजिए विटी थे, वो ह्यूमरस थे और सटायरिक थे। मतलब कि एलिजी इज नॉट ओनली written for death. Sometimes, when you are lamenting on the death of somebody, तो आप थोड़ा विटी हो जाते हो। आपको मालूम है that somehow the death was or somebody else is responsible for the death, and suppose he is a master either or might be a colonizer, तो आप विटीली उसको भी कोसोगे अपनी डेथ के अंदर, ठीक है ना। और sometimes death is personified, isn't it? सोचिए, मेरे साथ साथ सोचिए ना, क्योंकि केवल लेक्चर अटेंड करने से थोड़ी ना दिमाग चलेगा। यू हैव टू इंप्रूव योर इमेजिनेशन ऑल्सो, कि जब हम एलिजी की बात करते हैं तो देर आर मैनी वेज। सो एक और मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया, दैट ग्रेट जो ग्रीक और रोमन पोइट्स होते थे, ना केवल वो डेथ, वॉर, लव, ओके, और इरोटिक और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर लेते थे डेथ के अंदर। काइंडली शेयर दिस वीडियो। मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक बेनिफिट ऑफ दीज फ्री लेक्चर्स, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि दे वर विटी ऑल्सो व्हाइल दे वर डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ लेमेंट। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली डेथ, okay, they were humorous, they were satiric in tone, and these kind of subjects were also chosen for writing elegies, ठीक है। अब आ जाते हैं कि एलिजी का इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या योगदान है, बिकॉज आई गेस दैट मोस्ट ऑफ यू must have read only one or two elegies in your graduation or post graduation, पर मैं यहाँ पे एक eclectic approach लेके चलूंगा। और जब ये पूरा लेक्चर हो जाएगा, लेक्चर लंबा है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मैं छोटा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ। छोटा लेक्चर जो होता है वो इट कांट डू जस्टिस विद द स्टूडेंट्स। अब इंग्लिश लिटरेचर में आ जाइए कि अगर हम थोड़ा बैक में जाएं तो हम देखते हैं कि जॉन डन की एलिजीज जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती हैं, यू ऑल आर अवेयर दैट वी मोस्टली रीड जॉन डन्स रिलीजियस सॉनेट्स, वी रीड जॉन डन्स say love poems, isn't it, like Flea, Ecstasy, and all other poems. Mostly they are in the course, but we never know that he is also known for famous elegies also. Two elegies are famous, written by him. तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मॉडर्न सेंस में एलिजी की शुरुआत अगर किसी ने की तो दैट वाज जॉन डन, क्लियर। बट अगेन Shatrupa, don't worry beta, I request everybody kindly share the video so that maximum number of students can attend us. As I am sharing my knowledge with you, I think you can do a contribution, you can contribute to society by simply sharing my video, okay. And those who are watching me on YouTube, they can please write some comments after watching the video, ठीक है। So I was talking about John Donne, okay, but I would also like to inform you that no, we are very wrong if we say that John Donne is a precursor of elegy, clear, because the element of elegy has already been present or was present in the Anglo-Saxon period also, okay. So those who attend my classes regularly, live classes, they know that जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है उनको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी दिया था। आपको याद होगा मैंने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो एक्सेटर बुक में द वॉन्डरर, द सी फेरर एंड वाइफ्स लैमेंट, ओके, एक्सेटर बुक लिखिए जो लोग अब पहली बार लिख रहे हैं। देयर इज वन एक्सेटर बुक, एंग्लो सेक्सन जो पोइट्री है, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है, उसका कुछ कलेक्शन हमारे पास है, ओके। एंड फिलोलॉजिस्ट ने और लिंग्विस्ट ने उन पर स्टडी किया है, एंड दे फाउंड दैट एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टार्टिंग है दैट इज समहाउ अ सैड वन, सैड इन द सेंस लाइक देयर सब्जेक्ट मैटर वाज सैड। और उसमें हमारे पास जो सबसे फेमस एग्जांपल्स आते हैं जो लिटरेचर में फेमस हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लीजिए द वॉन्डरर, WANDERER, द वॉन्डरर, ओके, ये बहुत फेमस पोएम है। और जिस स्टूडेंट को एलिजी की PDF चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, माई नंबर इज गिवन हियर उसमें। और इफ दे वांट PDF ऑन एलिजी पर्टिकुलरली, MCQs ऑल्सो, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव देम इन फ्री, ओके, आई विल गिव देम फ्री, सॉरी प्रेपोजिशन इन नहीं आएगा। सो द वॉन्डरर बहुत फेमस है, द सी फेरर फेमस है, द वाइफ्स लैमेंट फेमस है, दीज आर वेरी वेरी फेमस एलिजीज, ठीक है। एंड दे आर पर्सनल mournful dirges, okay, and अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको और I will give you another words which are used by the other writers to express their lamenting feeling or say sad feelings. अगला पॉइंट आप लिखिए, 5वां पॉइंट है, वो है कि टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ओके, 1750 वाली पोएम जो हम बहुत पढ़ते हैं, ओके,
मैं 3 पोएम्स के नाम लूंगा। एक तो आपको लिखना है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड विच इज वर्ल्ड फेमस एलिजी। इज देयर एनीबडी इन माय क्लास राइट नाउ हु आर वाचिंग मी कैन टेल मी व्हाई एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज फेमस? व्हाई? What is that it is a world famous poem? Is there something which has made it famous? Anybody? Should I wait? Okay. Let me tell you, it talks about universal lament. It's a universal lament for all pervasive poverty and neglect and injustice. And that is present in almost all the societies. So वो पर्सनल से ऊपर उठ करके और यूनिवर्सल हो जाता है, इसीलिए वो एलिजी फेमस है। आई रिपीट, अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड क्यों फेमस है, सो yes, Ruchi's answer is 100% right, that so that everybody can connect. Okay, we all see some kind of lament, some kind of complaining tone. कहीं इनजस्टिस की कंप्लेंट है, कहीं पर गरीबी की कंप्लेंट है, कहीं पर ये कंप्लेंट है कि हम उतने एजुकेटेड नहीं हो पाए क्योंकि हम अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ पाए, कहीं पर किसी तरह की कंप्लेंट है। कंप्लेंट्स आर ऑलवेज देयर, ओके, एंड पीपल कीप लेमेंटिंग। आप बैठ जाइए तो किसी के साथ, तो आप देखेंगे कि वो अपने मन की बात जब करेगा तो ही और शी विल बी लेमेंटिंग इन द सेंस लाइक वो बताएगा कि समथिंग इज मिसिंग इन हिज लाइफ। एंड एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड ने उस चीज को वॉइस दी है, इसीलिए वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, अब आ जाइए, लिखिए 6 पॉइंट अ डर्ज। गुड मॉर्निंग विकास जी, हाउ आर यू? डर्ज लिखिए, डर्ज DIRGE। डर्ज पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। डर्ज इज अ सॉम्बर, अ वेरी सीरियस टोन लेमेंट एक्सप्रेसिंग मॉर्न और ग्रीफ। लिख लीजिए, मॉर्निंग और ग्रीफ को रिप्रेजेंट करने वाले सॉन्ग को हम डर्ज बोलते हैं, एंड इट इज पर्टिकुलरली संग इन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, मैं फ्यूनरल प्रोसेशन की जब बात करता हूं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आज की क्लास में आपको यह भी बताऊं कि जैसे देयर आर मैनी मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, उनको मालूम है कि वो एक खास किस्म की प्रेयर करते हैं जब वो दफनाते हैं किसी को। हमारे यहाँ पर जब डेड बॉडी ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, और उसके बाद अलग तरह का मंत्रोच्चारण होता है ना। तो क्योंकि हम लोग एक ऐसे समाज में जी रहे हैं इस वक्त दैट वी आर क्वाइट अलूफ। शहरी स्टूडेंट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, गर्ल्स को तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि डेड बॉडी को जलाते कैसे, क्योंकि शमशान में जाना मना है गर्ल्स का, है ना। तो और बॉयज भी जाते हैं तो दे नेवर सी लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिचुअल पंडित जी इज परफॉर्मिंग, है ना। क्या क्या हम लोग करते हैं। मैं डेथ के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एलिजी केवल पढ़ने से थोड़ी ना नॉलेज मिलेगी। एलिजी के ऊपर जब आप क्लास में लेक्चर दोगे प्रोफेसर बन के, तो आपको नहीं लगता आप स्टूडेंट को थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करोगे। अगर मैं ग्रीक कल्चर की बात करूं तो आपको पता है लीदे, LETHE, लीदे रिवर का रेफरेंस आता है, जिसमें वो आपको मालूम है, जैसे ट्रॉय मूवी जिन्होंने देखी है कि जब वो डेड बॉडी को क्रिमेट करते हैं तो उनकी आंखों के ऊपर सिक्के रख देते हैं, है ना। और बैटल ऑफ द बुक्स में वो सीन दिखा रखा है। तो आपको मालूम है कि भाई उनका एक कल्चर है। तो उसमें जब लेमेंट की बात आती है, डेथ की बात आती है, और डेथ के बाद जो सोल की जर्नी की बात आती है, सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन टिपिकल एलिजी। ठीक है, और डर्ज में उन सब चीजों का रेफरेंस आता है। हमारे हिंदुओं में क्या होता है, वैतरणी पार करने का रेफरेंस आता है, तो गोदान का बड़ा महत्व है। इसलिए एक बार मैं क्लास में बात कर रहा था कि बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा कि भाई डू you exactly know the meaning of the title Godan of this novel? Why everything revolves, at the end also revolves around this concept of the ritual of Godan. और आपको मालूम है प्रेमचंद एक मार्क्सिस्ट थे, तो वो एक अलग तरीके से नॉवल लिखते हैं। वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से हिंदू समाज को उन्होंने दिखाया है। वो काबिल तारीफ है, लेकिन जो प्रो हिंदू है वो उसको उतना अच्छा नहीं मानते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे हम बुद्धों की तरह नॉवल नहीं पढ़ते हैं। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हैं या कर रहे होते हैं तो एक प्रोफेसर की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक एक पोयम, एक एक नॉवल, एक एक ड्रामा भले पूरा ना पढ़ाए, लेकिन जितना पढ़ाए उसके अंदर वो उनको बीच बीच में ये बताता रहे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज सीन्स एंड हाउ वन शुड एक्सेप्ट इट। ओके, रीडर अगर बहुत सॉलिड नहीं होगा तो उसका रिस्पॉन्स कहां से सॉलिड होगा। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम व्हेन वी बिकम स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हमें मालूम ही नहीं है कि इंग्लिश जो कल्चर है क्रिश्चियन से पहले आपको पता है वो लोग रोमन थे, उससे पहले सब ग्रीक थे, बाद में सब क्रिश्चियन बने हैं।
तो उनके मिक्स कल्चर है काफी हद तक, ठीक है। बॉडी को क्रिमेट करते हैं। किसी को पता है बॉडी को जब कोई बॉडी नहीं मिलती है तो वो कैसे दफनाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि वो उसके किसी भी शरीर के किसी कपड़े को उसको जला करके उसकी राख को एक अर्न बरियल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भर करके फिर उसको दफना देते हैं, ठीक है ना। और स्पिरिट क्रॉस द रिवर होल्डिंग, हाँ बिल्कुल शत्रुपा सही कह रही है। सॉरी, मैं फेसबुक पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बीच बीच में, और वो जरूरी भी है ताकि स्टूडेंट्स कैन गेट कनेक्टेड। तो जब हम एलिजी की बात करते हैं तो अगर कोई टिपिकल एलिजी है तो उस टिपिकल एलिजी में डर्ज के अंदर साथ साथ में कुछ रेफरेंसेस आएंगे जो माइथोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डर्ज की बात कर रहा था कि डर्ज जो है वो बड़ा पर्सनल होता है। एक आदमी पर्सनल अकेला इंडिविजुअल होकर के और वो बहुत दुखी एक गाना गाता है, तब हम उसको डर्ज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए, मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा बातें बताता रहूंगा। थ्रैनोडी, राइट डाउन, THRENODY। तो थ्रैनोडी, डर्ज, मोनोडी, एलिजी, देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, ओके। थ्रैनोडी का मतलब लिखिए, थ्रैनोडी जो वर्ड है वो भी ग्रीक है, लिखिए इट इज अ वेलिंग ओड। थ्रैनोडी लिखा ना, ओडी का मतलब है ओड, ओके। एंड थ्रैनो का मतलब है कहीं ना कहीं वेलिंग, तो थ्रैनो मतलब वेलिंग, ओड का मतलब सॉन्ग, सो अ वेलिंग सॉन्ग। तो ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, राइट डाउन थ्रैनोडी। मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट द स्टूडेंट्स हु कांट कम टू द कोचिंग्स, कांट अटेंड एंड दे जस्ट वांट समथिंग valuable on YouTube and Facebook, they can get some benefit, ठीक है। So a threnody can be a hymn, it can be a song, it can be a poem, okay। और ये भी मेमोरियल कोमेमोरेट करते हैं, उसको मोमेंटलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डेड पर्सन को। आपको पता ही है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे यहाँ पे डेड कोई भी डेड है उसको कैसे कोमेमोरेट करते हैं, या हम उसकी याद बरकरार रहे उसके लिए क्या करते हैं, बताओ अगर आपको मालूम है तो। If you are very much connected with the rituals of your culture, your religion and your family. अब क्योंकि this is online class and if I ask, I know that it will take some time in writing the answer and all. So let me convert it into a rhetoric question and let me answer this question. आपको मालूम है मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी अभी पिछले साल, तो और एक बार जब मेरी दादी जी की डेथ हुई थी तो मैं जब गया वहां पे तो मैंने देखा कि डैड और चाचा जी वगैरह बहुत सारे बर्तन लेके आए, बड़े बड़े। एक कमरा तो पूरा बर्तनों से भर गया, बड़ी बड़ी बाल्टियां स्टील की। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा, और एक नाम लिखने वाला आया हुआ था, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली राइटिंग द नेम्स ऑफ माय ग्रैंडमदर और मेरे चाचा जी का नाम, चाचा जी की डेथ पर। फिर मुझे पता चला कि उसको जो भी आदमी डेथ में आया है, गुड मॉर्निंग मिस्टर नरोत्तम जी, उनको when they go after the function is over after 12 days, तो उनको एक गिफ्ट दिया जाता है। वो एक्चुअल में एक मेमोरी है उस आदमी की, उसका उस बर्तन पे नाम लिखा होता है। सो दैट इज अनदर वे ऑफ इन आवर कल्चर टू कोमेमोरेट अ पर्सन। लेकिन आपको मालूम है, अब जैसे लिसिडस है मिल्टन की लिखी हुई, तो आपको मालूम है ना लिसिडस एक कैसे बोलते हैं इसको, स्टॉक कैरेक्टर है ग्रीक एलिजी के अंदर, रोमन एलिजीज में। तो उसका नाम दे करके अपने फ्रेंड को उसने अमर कर दिया। तो एक एक्चुअल में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मेलोडियस तरीके से, सुंदर तरीके से एक पोएम लिखते हैं और उस आदमी को कोमेमोरेट करते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये थ्रैनोडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है। थ्रैनोडी जैसे कि मैंने बताया, इट इज अ मेमोरियल सॉन्ग, इट कैन बी अ हिम, इट कैन बी अ मॉर्निंग poem, and it is composed and it has originated from the Greek term. Thrano means wailing and oide means ode means song, okay, and all the other terms like tragedy, comedy, parody, melody, rhapsody, ये जो words हैं ये सारे यहीं से निकले, ठीक है। और अब लिखिए एक 8वां पॉइंट। इन द 8th पॉइंट यू कैन राइट, ये जो मैंने आपके लिए PDF बनाई है, आप इसको मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको सर्च कर लीजिए मुकेश पारिक के नाम से, यू कैन ज्वाइन दैट। मैं उस पर इसको शेयर कर दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। एंड पर्सनली यू वांट टू कांटेक्ट मी, देन आई कैन गिव यू दिस PDF। अब देखिए, उससे आपके नेट का आराम से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कहीं ना कहीं घूम फिर करके कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन डिटेल, ओके। अब आइए 8वें पॉइंट पे, लिखिए कि व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस। ओके, हमारे पास बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो जैसे मैंने बताया डर्ज है, ओके। कोरोनाश एक वर्ड है, लिखो CORONACH, कोरोनाश। लेमेंट एक वर्ड है, एलिजी एक वर्ड है, ठीक है।
और एक है एपिटेफियोस, लिखो एपिटेफियोस, जिससे एपिटाफ वर्ड आया है। एपिटाफ आपको मालूम होना चाहिए, डेड बॉडी जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी जो कबर है उसके ऊपर हम लोग एक एपिटाफ लिखते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि जो शेली की एलिजी है कीट्स की डेथ पर, या मिल्टन की एलिजी है, या जॉन डन ने जो एलिजीज लिखी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एलिजीज हैं जो हिडन है और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। सो एक आप लिखिए मेरा कहना मान के, आपने ए.ई. हाउसमैन का नाम सुना है? ए.ई. हाउसमैन, he was a modern writer, he was a professor of this Greek language there in Oxford University. He was a homosexual and he is a very saving voice in the modern age. कि modernity आपको मालूम है एक अलग तरह की poems लिखने की तरफ busy हो गई, and he was the person who somehow saved English literature. Okay, उनकी एक बहुत To a Shropshire Lad लिख लीजिए, To a श्रॉपशायर लैड, एक बहुत फेमस कलेक्शन है। उसमें जैसे हमारी जेजूरी पोएम है ना जिसमें बहुत सारे कलेक्शन है, या हम कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन है, जैसे ओ टू द वेस्टलैंड, तो ऐसे ही इसमें ओ टू, ये जो है हमारी लैड टू अ श्रॉपशायर लैड, उसमें देयर आर सो मेनी सेक्शंस, मोर देन 60 तो मैंने पढ़े हैं। उसमें एक है टू एन एथलीट डाइंग यंग, एक सेक्शन आता है, सो दे विल आस्क यू इन एग्जाम लाइक फ्रॉम वेयर दिस सेक्शन इज फेमस, एंड उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स आती हैं जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं। और इफ यू ज्वाइन माय क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, देन आई विल बी टीचिंग इन डिटेल। आपको पता है ये लाइव क्लासेस में उतना डिटेल हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक होता है ना पीपीटी से पढ़ाना, बोर्ड पे पढ़ाना, वो एक अलग चीज होती है। चलिए, तो मैं दोबारा बोलता हूं, ए.ई. हाउसमैन की पोएम टू एन एथलीट डाइंग यंग, ठीक है। अब उसके बाद आगे आइए अगले टर्म पे, उसमें आपको मैं और 2-3 इंपॉर्टेंट पोएम्स के नाम लेता हूं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश लिटरेचर में तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट टॉमस ग्रे की जो एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड फेमस है। इसके अलावा लिखिए एक फ्रेंच एलिजी बहुत फेमस है, उसका नाम लिख लीजिए ल लैक, L-E L-A-C लैक। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1820, ठीक है। अल्फोंस डी लेमर्टाइन की लिखी हुई है, लिख लीजिए अल्फोंसे, A-L-P-H-O-N-C-E D लेमर्टाइन, L-A-M-A-R-T-I-N-E, ठीक है। और एक जर्मन एलिजी भी बहुत फेमस है जिसका नाम है डुइनो एलिजीज, ये बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। डुइनो एलिजी, D-U-I-N-O एलिजीज, डुइनो एलिजीज पे हमारे नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपको मालूम है रेनर मैरिया रिल्क की लिखी हुई पोएम है। रिल्क पे 3 बार क्वेश्चन आया नेट के अंदर, ओके। मैं बीच में बता रहा हूं, जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, कि ये मेरा 15th नेट क्लियर हुआ है। मैं 3 बार JRF हूं, डबल एमफिल हूं, ऑलरेडी PhD हूं, और 20 साल से नेट के लिए स्टूडेंट्स तैयार कर रहा हूं। और अब मेरी बुक्स भी मार्केट में आने वाली है, और अभी मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत पॉपुलर है, उसको पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेट निकल गए हैं। और जिनको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, दे कैन गो टू YouTube चैनल एंड look at my lectures. They are not for only promotion, they are real life lectures. They can check them and they can make their decision, like whether they should join the others self-bratting people or sincere teacher who are working hard on their students. ठीक है, चलिए, तो मैं दोबारा से बात करता हूं कि 3 एलिजीज वर्ल्ड में फेमस है। एक है टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1750, और एक है ल लैक अल्फोंसो डी लेमर्टाइन, और तीसरी है डुइनो एलिजीज जो रिल्क की लिखी हुई है, ये 1922 में पब्लिश हुई। ये बात भी क्लियर हो गई। फिर मैंने डर्ज बता दिया, थैनडी बता दिया, सिनोनिम्स बता दिए। अब 1-2 पॉइंट्स के नाम और लिखिए आप। देखिए, एक जॉन ड्राइडन की चार्ल्स सेकंड की डेथ पे लिखी गई पोएम है, उसका नाम लिखिए, हमें एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। थ्रेनोडिया ऑगस्टालिस, राइट डाउन। It was an elegy written by Dryden on the death of Charles II of England, जिनकी वजह से रेस्टोरेशन एज फेमस है, ठीक है। थ्रेनोइडिया, T-H-R-E-N-O-D-I-A, थ्रेनोइडिया ऑगस्टालिस, A-U-G-U-S-T-A-L-I-S, ऑगस्टालिस। अच्छा, आप में से कितने हैं जिन्होंने रैल्फ वेल्डो एमरसन की जो थ्रेनोडी पढ़ी है अपने बेटे की डेथ के ऊपर? ऐसे बेन जॉनसन ने भी अपने बेटे की डेथ के ऊपर पोएम्स लिखी है, लिख लीजिए बेन जॉनसन फेमस पोएम्स ऑन द डेथ ऑफ हिज सन, देन रैल्फ वेल्डो एमरसन, उसका नाम ही थ्रेनोडी है, T-H-R-E-N-O-D-Y, ओके। ऐसे मुझे याद आ रहा है कि जेम्स टॉमसन जो प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म है, उनकी डेथ के ऊपर कॉलिंस ने एक हेयर लाइज द ड्रूअर्ड ऐसे करके एक पोएम बहुत फेमस है,
लिख लीजिए, कॉलिंस फेमस पोएम ऑन द डेथ ऑफ जेम्स थॉमसन, ठीक है। ऐसे रैल्फ वेल्डो एमरसन बड़े राइटर हैं, आपको मालूम है, ट्रांसेंडेंटलिज्म के अमेरिका में, उनकी पोएम अपने बेटे की डेथ पर, बेन जॉनसन की पोएम अपने बेटे की डेथ के ऊपर। सो ऐसे करके देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिजीज। तो मैं जब आपको दोज हु वांट पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच आई एम डिलीवरिंग राइट नाउ, आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9828402032 इज माय नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने मोनोडी बताया, डर्ज बताया। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज द पैस्टोरल एलिजी। अब पैस्टोरल एलिजी हम बहुत पढ़ते हैं हमारे लिटरेचर के सिलेबस में, वेदर यू गो टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द syllabi of English literature, they always teach us these kind of poems. So pastoral elegy क्या होता है? पहले तो सबसे पहले I would like my students be aware about certain terms. देखिए, एक वर्ड है इडल, एक बहुत खूबसूरत वर्ड है इंग्लिश में, राइट डाउन, IDYLL, इडल, ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इडल्स अपने आप में एक पोएम की फॉर्म भी होती है, ओके, और उसी से एक वर्ड बना इडलिक, ओके। इडली हमारे यहाँ खाने की भी चीज है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। इडल, thank you sir, thank you for calling my lecture interesting, and I request everybody kindly help, कोरोना चल रहा है, हमें सबकी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेक्चर को शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट देखते हैं इसको यूट्यूब पे, आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन वॉच इट, तो वहां पे उसके ऊपर कमेंट लिखिए आपको क्या सीखने को मिला, सो दैट द न्यू कमर्स व्हेन दे ज्वाइन अस, they can feel better that there are people who are working for the cause of society, betterment of society. मैं pastoral elegy पे अब लेक्चर, pastoral एक वर्ड लिख लीजिए आप लोग, the word has come from the word pasture. pasture का मतलब जो घास का मैदान होता है, जहां पे shepherds, गडरी अपनी भेड़ें चराते हैं, ओके। सो इट इज अगेन अ जॉनरे, ठीक है। और इडलिक का मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत सुंदर वर्ड है। इडलिक का मतलब बताऊं क्या होता है? देखिए, इफ यू सर्च सम थिजरस फॉर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रूरल, तो देखिए रूरल एक न्यूट्रल वर्ड है। आपने देखा होगा कि एक इंग्लिश में और हिंदी में भी एक सिनोनिम का एक कॉन्सेप्ट होता है, पर्यायवाची का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड के 5 पर्यायवाची तो 5 एक जैसे ही होते हैं। मैं कई क्लासेस में ये बात कह चुका हूं कि इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट अगर आपको बनना है तो आपका कमांड थोड़ा वोकैबुलरी पे होना चाहिए, ओके। वोकैबुलरी पे कमांड होगा तो आगे रिसर्च में बहुत हेल्प मिलेगी। यू कैन रीड बेटर बुक्स रिटन बाय दी फॉरेन राइटर्स एंड देन यू कैन स्प्रेड नॉलेज, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको, आप रेडी हो एग्जांपल के लिए कि सिनोनिम का कितना इंपॉर्टेंस है और कैसे हमें अंतर पता होना चाहिए, उससे हमें वर्ड का यूसेज समझ में आता है। मैं थोड़ा सा डायग्रेस करूंगा। यूज एंड यूसेज दो वर्ड है इंग्लिश में, ठीक है। यूज क्या होता है? प्रयोग। जैसे भाई मान लीजिए मेरे पास एक पेंसिल है, ओके। अब इस पेंसिल का क्या यूज है कि भाई ये लिखने के काम आती है ना, तो ये यूज हो गया। अब है कि भाई इसका यूसेज क्या है, तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो मैं कहूंगा कि इसको ऐसे छीलते हैं, पहले शार्प करते हैं शार्पनर से, ओके। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे यूज करते हैं, ओके। जैसे मार्कर, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे जब मार्कर से लिखते हैं तो मुझे उसका यूसेज पता है कि उसको खोलो, लिखो, और अगर आप लेक्चर देते वक्त बात करो तो उसको वापस बंद कर लो, नहीं तो वो इंक सूख जाएगी। इसका मतलब उसका यूज भी पता है और यूसेज भी पता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है, उसका एक यूज भी पता होना चाहिए और यूसेज भी पता होना चाहिए। वर्ड का यूज क्या है कि लैंग्वेज में यूज करते, दैट्स इट, ओके। लेकिन उसका यूसेज पता नहीं होता है और इसी में हम मात खा जाते हैं। क्यों खा जाते हैं? क्योंकि भारत एक ऐसा देश होकर रह गया जहां पे सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। पागल की तरह लोग सिलेबस और सीक्वेंस के पीछे पड़े रहते हैं, नॉलेज और विजडम तो दूर रह जाते हैं और केवल सिलेबस कवर होता है। तो ठीक है, उनका सोचना सही है, अपने अपनी सोच होती है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, ठीक है। सो मेरी सोच अलग है। मैं मानता हूं कि नॉलेज बढ़ाइए और नॉलेज से विजडम की तरफ जाइए, वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। आई अगेन रिक्वेस्ट काइंडली शेयर द वीडियो, ओके। मैं बता रहा था यूसेज। अब जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है आंख। अब आंख के पर्यायवाची आप दीजिए मुझे, तो आंख के पर्यायवाची आप मुझे क्या दोगे? चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, है ना, अक्षी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब आप इनको एक जगह थोड़ी यूज कर सकते हो कि मेरा भाई आंखों का डॉक्टर है। अब इसको मैंने आंख की जगह पर्यायवाची लिखा कि मेरा भाई नयनों का डॉक्टर है। तो जैसे ही आप नयनों का डॉक्टर बोलोगे तो लोग हंसेंगे। नयनों का डॉक्टर का मतलब है बैठ के आंख मटकता करता है, ऐसे करता है, मतलब एकदम उसका एक कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि नयनों का डॉक्टर है अच्छा, मैंने कहा कि मेरे ज्ञान
मेरे ज्ञान नयन खुल गए। अब ज्ञान नयन इज नॉट अ गुड कोलोकेशन, इसको कोलोकेशन बोलते हैं। कोलोकेशन पे भी नेट में क्वेश्चन आया है, जो मुझे क्वेश्चन करते हैं ना कि भाई लंबे लेक्चर क्यों देते हो, यू आर नॉट स्मार्ट टीचर। तो उनको मैं बता दूं, मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता हूं कि इंग्लिश लिटरेचर है ये, इसमें 10-15 मिनट का वीडियो डाल करके आप किसी को कुछ ज्ञान नहीं दे सकते। इसमें पेशेंस के साथ बैठना होगा, बैठ करके अपने आप को तकलीफ देनी होगी, लेक्चर सुनना होगा, और उसके बाद आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है। उसकी कुछ गारंटी मैं दे सकता हूं कि हाँ कुछ आप सीख गए, और जब कुछ सीख गए तो सिखाने लायक आप बन गए। ओके, सो बिल्कुल भी और एक विनम्रता और पेशेंस के साथ टीचर को अटेंड करना बहुत जरूरी है। आज की यूथ में नोटिस कर रहा हूं, मैं कोई बूढ़ा नहीं हो गया हूं, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूं कि आज की यूथ को उतावलापन ज्यादा है और क्रिटिसिज्म बहुत है उनके दिमाग में, हर बात पे क्रिटिसाइज करना। आप क्रिटिसाइज ही करते रह जाओगे ना तो आपको सिखा नहीं पाएगा सिखाने वाला। ओके, तो विनम्रता बहुत 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 जरूरी है। चाहे टीचर कुछ भी कह रहा है उसको सुनना बहुत जरूरी है, सुनोगे तो कुछ ना कुछ ले लोगे। ठीक है, अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई सोचेगा कि ये बीच में कहां से आ गया लेक्चर, ये बिल्कुल है, डाइग्रेशन तो वही करेगा जिसके पास ज्यादा नॉलेज है। जिसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है वो तो लकीर का फकीर है, वो तो टू द पॉइंट बात करके चला जाएगा, उसको डर लगता है कहीं मैं भूल गया तो मुझे दोबारा याद ही नहीं आएगा। सो आई बेग योर पार्डन फॉर डाइग्रेसिंग, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट। अब एक बात बताइए, मेरे ज्ञान नयन खुल गए या मेरे ज्ञान लोचन खुल गए, दीज आर नॉट करेक्ट कोलोकेशन। कोलोकेशन का मतलब होता है प्लेसिंग टू वर्ड्स अकॉर्डिंगली। ओके, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वेज्ड अ वॉर, वेज वर्ड आएगा वहां पे। ओके, वेज के साथ जो वॉर के साथ वर्ड है वो वेज है, वेज्ड बैटल नहीं आएगा। इसका मतलब है हर वर्ड का अपना एक यूसेज है। तो ज्ञान के साथ चक्षु, इसका मतलब चक्षु सूक्ष्मता का वर्ड है। ओके, नयन एस्थेटिसिज्म का, सौंदर्य का शब्द है। नेत्र जो है वो बनावट का और स्ट्रक्चर का शब्द है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कैसे नॉलेज को हम ले, कैसे सीखें, कैसे किसी राइटर को ध्यान से पढ़े, धीरे 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 हम शब्दों पे पकड़ अपनी करेंगे, और देन वी विल बी इनटू एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो मैं पेस्टरल समझाने के लिए अभी आया हूं कि इडलिक एक वर्ड है इंग्लिश में। इडलिक वर्ड हम तब यूज करते हैं बच्चों जब हम देखते हैं कि गांव का जो माहौल है जिसमें इट इज अ काइंड ऑफ अ काइंड ऑफ myth. I would say that there is always beauty, there is always calmness, there is always a better life. ओके, सो आपने कभी देखा होगा कि जब सीनरी बनाते हैं, गांव की एक औरत चूल्हा जला रही है, तो दीज आर कॉल्ड रोमांटिक सीन्स। रोमांटिक इन द सेंस लाइक इमेजिनेशन है, कुछ एक हमारे दिमाग में एक कल्पना है कि जो गांव होता है वो बड़ा सुखी होता है, तो इडलिक सीन। ओके, और ऐसे करके सिल्वन एक वर्ड है इंग्लिश में जो इसका पर्यायवाची माना जाता है रूरल का, लिख लीजिए SYLVN। सिल्वन इज अगेन रूरल सीन और द सीन ऑफ अ विलेज और कंट्री साइड विद ब्यूटी, विद पीस। ओके, सो इडलिक वर्ड आ गया, सिल्वन आ गया। रूरल तो मैंने बताया न्यूट्रल वर्ड है, और रस्टिक अगर मैंने बोल दिया तो नेगेटिविटी में आ गया। अगर किसी को गंवार कहना है तो बोलेगा रस्टिक, रस्टिसिटी। क्लियर? तो ऐसे करके हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे। ठीक है, अब बात चलते हैं कि पेस्टोरल की जब बात आती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस एलिजी में कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला लिखिए, एक म्यूज को इन्वोक किया जाता है। ओके, म्यूज एक कोई काव्य की देवी हो सकती है, क्योंकि ग्रीक कल्चर से रिलेटेड है ये। ठीक है, और उस म्यूज के सामने ये क्या करते हैं, अपने आप को शेपर्ड मान लेते हैं। कोई भी एक फेमस शेपर्ड मान लिया। हमारे यहाँ पे हिंदुओं में सबसे फेमस शेपर्ड कौन है बताओ? शेपर्ड तो नहीं है, आई एम सॉरी, काउ हर्ड है, गोपाल, कृष्ण भगवान का नाम है ना, गोपाल। गोपाल आपने देखिएगा, नंद लाला, गैया, ये एसोसिएट हो जाता है। ओके, उनके कल्चर में पेस्टोरल को एक सबकॉन्शियस में बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेस हासिल है। ग्रीक कल्चर के बाद जब ये इंग्लिश कल्चर में आया तो इसको एक अलग मुकाम हासिल हुआ। उसका कारण बताता हूं आपको। बताइए शेपर्ड के साथ क्या इमेज दिमाग में आती है? शेपर्ड के साथ दिमाग में इमेज आती है क्राइस्ट की, क्योंकि क्राइस्ट वॉज अ शेपर्ड। आपको मालूम होना चाहिए, उनके फादर तो कारपेंट्री करते थे और वो भेड़ चराने जाते थे। तो जब वो भेड़ चराने जाते थे तो आज की तारीख में हम जब कोई भी जैसे मिल्टन क्लिसिडस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बेसिक चीज आती है कि आप देख रहे हो कि वो कह रहा है कि फोल्ड का मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा जानते हो, जिसमें भेड़े रहती है। तो चर्च को वो फोल्ड कहते हैं, खुद को वो शीप कहते हैं, और उसको संभालने वाले जो मैनेज करने वाले जो लोग हैं उनको वो या तो चर्च के फिगर्स बोलते हैं, जैसे पोप और बिशप्स और प्रीस्ट्स हैं, और क्राइस्ट जो है उनका हेड है। ओके, सो नाउ यू कैन एसोसिएट लाइक देयर आर रिलीजियस सैंक्टिमोनियस
sacred and pious associations with एलिजी, पेस्टोरल एलिजी, ठीक है। और उसमें पोएट अपना ग्रीफ दिखाता है, और फिर वो जब ग्रीफ की बात करता है, देन ही टॉक अबाउट ऑल द पैगन एलिमेंट इन द पोएम। पैगन एलिमेंट में क्या करता है वो सभी, क्योंकि पैगन किसको कहते हैं, जिसमें सभी नेचर के जो जीव हैं, पेड़ पौधे, उनमें कोई ना कोई देवी देवता का वास मानते हैं वो लोग, जैसे हम मानते हैं। सो दे कीप आस्किंग लाइक ट्रीज, ओ ये जो ट्री की देवी है वो कहाँ थी, वन देवी कहाँ है, नदी की देवी कहाँ थी, क्यों नहीं किसी, क्योंकि शेपर्ड कोई मर गया है, हो सकता है किसी शेर ने उसको मार दिया है, किसी भेड़िए ने मार दिया है, या किसी सांप ने काट लिया है और उसकी डेथ हो गई है। सो दे लैमेंट इट बाय सिंपली क्रिएटिंग एन इमेजरी ऑफ नेचर। ये बेसिक बात बता रहा हूं आपको, दिस इज समथिंग बेसिक। उसमें वो कुछ और एडिशनल फीचर्स भी डाल लेते हैं, ठीक है। उसमें फ्लावर इमेजरी आ जाती है, नेचर इमेजरी आ जाती है, पेड़ों की इमेजरी आ जाती है, मछलियों की इमेजरी आ जाती है, फिर साथ में एसोसिएशन हो जाता है ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस का। तो वो पोएम थोड़ी सी पढ़ने लायक और ब्यूटीफुल बन जाती है, ठीक है। और मेन कैरेक्टर या तो खुद रहता है, या वो जो जिसकी डेथ हो गई है उसको वो मान लेते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिरिकल होती है पेस्टोरल पोएम, हमेशा ब्यूटीफुल और गाने लायक होती है, उसको हम गा सकते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत डिटेल है इसमें, जिसके लिए आप मेरी इस पीडीएफ को मुझसे लेने के लिए कांटेक्ट करें मुझसे। और 3 नाम मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, लिखिए। एक तो कैटलस है, और एक ओविड है, और एक है आपने नाम सुना होगा इनका, टाइट्रेयस। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो ग्रीक और रोमन पोइट्री थी उसके अंदर कैटलस और ओविड का नाम बहुत ज्यादा आता है। अब मैं आपको और ज्यादा इंग्लिश पोएम्स के बारे में बात करूंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम मेजर इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएम्स विच आर दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एलिजीज, जिसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है वॉल्ट विटमन का। वॉल्ट विटमन जो कि एक अमेरिकन राइटर थे, आपको मालूम होना चाहिए, जिन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन लिखा है। उनकी एक पोएम है अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर, उसका नाम लिख लीजिए, व्हेन लाइलेक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम। ये मैं इसको ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं हर साल। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। देयर इज लॉट मेनी सिंबल्स आर देयर। वुड थ्रश का सिंबल है, क्लाउड का सिंबल है, ओके, और एक लाइलेक फ्लावर होता है उसका सिंबल है। सो देयर आर सम symbolic elements are present, and this elegy is a very beautiful elegy in which the whole America and the American participate, okay, for the cremation of this Abraham Lincoln. Anybody who can tell me like why Abraham Lincoln is such a great figure in America? Because he was the one who talked about he raised his voice against the discrimination between the black and that chasm between the black and the white, okay, apartheid के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। He is responsible for creating a kind of equality among the Americans. So उनको हम लेमेंट करते हैं और उसको पढ़ते हैं। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो, केवल फैक्ट की तरफ मत जाओ, ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर को एंजॉय करो, चीजें याद रहने लगेंगी। आप पता फैक्ट याद करोगे तो नहीं रहेंगे। आपने देखा इस बार का नेट कितने ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस थे, किस तरह के क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे जिस तरह के नोट्स मैं दूसरे टीचर्स के देखता हूं, मेरे होश उड़ जाते हैं कि वो क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ओके, आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए जैसे कि आप प्रोफेसर हो और आपको एक लेक्चर देना है जाकर के। अगर आप ऐसे लेक्चर की तैयारी करोगे ना तो आपको वो टॉपिक याद रहेगा। और मेरा जो स्टडी मटेरियल और मेरी जो क्लासेस है वो इसीलिए फेमस है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, मैंने ए हाउसमैन का नाम ले ही लिया है आपकी क्लास में। और एक है W.B. यीट्स की डेथ के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी सार्केस्टिक 3 हिस्सों में डिवाइडेड पोएम है जो एक मॉडर्न एलिजी की कैटेगरी में आती है, और वो है W.H. ऑडेन की लिखी हुई मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। ओके, मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा उस पोएम के ऊपर कि जैसे एक होता है ना मॉडर्न ट्रेजेडी और एक होता है अपने एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी, ओके, ग्रीक ट्रेजेडी। अब ग्रीक ट्रेजेडी तो क्या कहती है कि केवल प्रिंस या राजा की डेथ को ही हम लेमेंट मतलब दिखाएं और उसी से पिटी और फियर आएगा। बट मॉडर्न एज क्या कहती है कि भाई वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, कम ऑन, अ सिंगल डेथ ऑफ अ कॉमन मैन ऑन द रोड साइड इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके लिए भी जो दोषी है उसको ढूंढना पड़ेगा हमको। तो जो मॉडर्न एलिजी है उसमें दे डोंट यूलोजाइज, यूलोजाइज का मतलब बहुत तारीफ नहीं करते। दे डोंट पुट दैट डेड पोएट ऑन द पेडेस्टल कि नहीं वो बहुत बड़ा महान था। वीकनेसेस आर देयर। सो इन द मॉडर्न एलिजी एक बेसिक क्या पता आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि मॉडर्न राइटर्स राइट एलिजी बाय सिंपली कंसीडरिंग
लाइक मुझे याद आ रही है वो लाइन, यू वर फूल लाइक अस, यू नो, WH ऑर्डन ने इसके लिए बोला है, WB Yeats के लिए, कि तुम हमारे जैसा ही मूर्ख था, और कोई ज्यादा चेंज नहीं आया उसकी डेथ के बाद। लेकिन जो पेस्टोरल एलिजी उसमें क्या बताते हैं कि जब वो उनका शेपर्ड मर गया तो मतलब सृष्टि ही रुक गई, बड़ी प्रॉब्लम आई, सारे देवी देवता रोने लगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिखाते, इसमें दिखाते हैं ही वॉज अ कॉमन मैन, नथिंग हैपेंड, बट यस पोइट्री में कुछ कमी आ गई, यू नो। तो ये पोएम हम कभी पढ़ेंगे जब मैं बात करूंगा। एडोनिस आपने पढ़ी होगी कई लोगों ने, बहुत खूबसूरत कविता है। इसके अंदर जॉन कीट्स की डेथ को सेलिब्रेट किया गया है, उसको बताया गया है कि कैसे, और उसमें राइटर ने स्पेलिंग भी बदल दी है। एडोनिस तो आपको मालूम ही है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है ग्रीक माइथोलॉजी में। तो किसी भी हैंडसम लड़के को आज की तारीख में भी अगर सपोज योर वोकैबुलरी इज गुड, देन यू कैन से वाओ लुक यू आर लुकिंग, यू नो, यू लुक लाइक एडोनिस टुडे, ओके। बट द राइटर हैज चेंज द स्पेलिंग, एडोनाइज कर दिया, ओके। अब मैं उसकी डिटेल नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। एक और पोएम फेमस है, आर्थर ह्यू क्लफ, CLOUGH, आपने नाम सुना होगा। आर्थर ह्यू क्लफ के ऊपर मैथ्यू आर्नल्ड ने जो पोएम्स लिखी हैं वो बहुत फेमस है। आपने उनमें पढ़ा होगा, उसकी थायरसिस बहुत फेमस है ना। थायरसिस भी हम हर साल पढ़ाते हैं, 2-2, 3-3 बार। थायरसिस में से कई बार क्वेश्चन आया नेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में एक पोएम पे मैं बात कर रहा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट यू नो माय लास्ट लेक्चर, और से लास्ट टू लास्ट लेक्चर ऑन दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, जिसमें आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, हमारे जो एंड्रयू मार्वल हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी है, द निम्फ कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन, FAUN, फॉन का मतलब हिरन का बच्चा, कि कैसे ट्रूप्स निकली होंगी उधर से और एक हिरन का बच्चा मर गया। सो द राइटर इज शोइंग, यू नो, ही हैज created a girl, and that girl is beautiful, and she must be, I think, you know, a countryside girl, and she's lamenting at the death of that fawn. And through that, the writer has, you know, included the environmental elements in the poem and all the beautiful elements, you know, which are present in the poem. ऐसे करके वो पोएम भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं लिसिडस के बारे में बता ही चुका हूं। अच्छा, एडमंड स्पेंसर का जो शेपर्ड्स कैलेंडर है, वो भी एक पॉपुलर पैस्टोरल पोइट्री की कैटेगरी में आता है। आप लिख लीजिए, जिसके बारे में आपको मालूम है कि काफी तारीफ हुई है उस पोएम की, ठीक है, और लिसिडस की भी बहुत तारीफ होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, लिखिए। अभी मैं लाइव क्लासेस में इस टॉपिक को टच कर रहा था, मतलब मेरी जो लाइव पेड क्लासेस हैं जूम चैनल के ऊपर, ठीक है। लास्ट पोएम थी बेटा, उसका नाम दोबारा लेता हूं, एंड्रयू मार्वल की पोएम है, द निम्फ, NYMPH, निम्फ कंप्लेनिंग फॉर द डेथ ऑफ हर फॉन, FAUN, ओके। जैसे मैंने बताया कि उसमें एक हिरन का बच्चा मर जाता है, और जो ट्रूप्स यानी सेना की टुकड़ी उधर से गुजरी होगी, और आपको पता है सैनिक तेज भागते हैं, और मान लीजिए कोई हिरन का बच्चा पैरों में आके मर गया होगा, तो राइटर ने उसके ऊपर लिखा है कि भाई वो बहुत रो रही है, फिर वो एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होता है, यू नो, इन सब चीजों के ऊपर वो बात कर रहे हैं, कैसे वो कंपैटिबिलिटी और यू नो जो पूरी की पूरी जो साइकिल है उसके बारे में उस पोएम में बात की गई है। उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, आई थिंक मेरी जो पेड क्लासेस हैं जिनमें बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, उसमें अभी कुछ दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे हेलेनिस्टिक। अब हमारे ज्यादा इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इतना पता होता है कि हेलेनिज्म इज अ टर्म which we use for John Keats, you know, that Greek elements present in John Keats poems. लेकिन हेलेनिज्म आप लिख लीजिए, अपने आप में एक पीरियड है, हेलेनिस्टिक बोलते हैं उसको। हेलेनिस्टिक हेलास से आया है, और हेलास एक गॉडेस का नाम है। और आप बस इतना याद रख लो कि ग्रीक एलिमेंट जब कम हो रहा था और रोमन एलिमेंट बढ़ रहा था, उस पर्टिकुलर पीरियड को अपन बोलते हैं, यानी कि 3rd and 2nd सेंचुरी BCE को अपन हेलेनिस्टिक पीरियड की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। तो पेस्टोरल एलिजी उस वक्त जो है, उस वक्त के एक राइटर बहुत फेमस है जिनको इंग्लिश राइटर्स ने ज्यादा कॉपी किया है। उनका नाम लिखिए, 3rd सेंचुरी के हैं ये, थियोक्राइटस लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। 100% शेपर्ड्स के साथ डील करने की हेलेनिस्टिक पोएट्री हैविंग पेस्टोरल एलिमेंट एंड द 3rd सेंचुरी BC, थियोक्राइटस इज THEOCRITUS, ये बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि रोमन पोएट है वर्जिल, है ना, उनकी भी पेस्टोरल पोएट्री बहुत फेमस है। उनकी फेमस पोएम का नाम लिखो, आर्केडिया, ओके।
आर्केडिया में सेट किए, तो आर्केडियन एलिमेंट, और आर्केडिया भी अपने आप में एक बहुत फेमस है, उनका लोकेशन आर्केडिया नाम की जगह है, उससे ये नाम पड़ गया आर्केडिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि फिलिप सिडनी ने आर्केडिया लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको मालूम है जो मीटर होता है उसमें जैसे आयम्बिक मीटर है, तो आपको एक टेक्निक बताता हूं कैसे हम इनको 4 मीटर है इंग्लिश में मेजर। ओके भाई, आयम्बिक का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद में स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रोकेक हो जाएगा, है ना। तो भाई पहले स्ट्रेस्ड और फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर एनापेस्टिक हो जाएगा, 2 अनस्ट्रेस और 1 स्ट्रेस, ठीक है। और एक जो है वो हो जाएगा, 1 सेकेंड बच्चों, एक हो जाएगा तो आयम्बिक हो गया, फिर मैंने बताया कि डक्टाइल हो गया, सॉरी ट्रोकेक हो गया, फिर एनापेस्ट हो गया, 2 अनस्ट्रेस स्ट्रेस, और फिर डक्टाइल हो गया। डक्टाइल में क्या होता है, 1 स्ट्रेस और फिर 2 अनस्ट्रेस। तो ऐसे करके इस मीटर को आप एटलीस्ट इत्याद करके याद रख लो, ITAD। आई मतलब आयम्बिक, ठीक है, टी इत्याद में बोल रहा हूं, ITAD, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं आपको। टी मतलब ट्रोकेक, ओके, फिर ए मतलब एनापेस्ट, ओके, और डी मतलब डक्टाइल। तो ये जो एलईजी होती है ये डक्टाइल मीटर में लिखी जाती है। अब डक्टाइल हेक्सामीटर ये भी लिख लीजिए, आपको मालूम है ना, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर। तो हेक्सामीटर का मतलब है 6 उसमें सिलेबल्स होते हैं, 6 जगह स्टॉप होता है, ऐसे मान लीजिए आप। अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड, तो दो 1 स्ट्रेस और 2 अनस्ट्रेस। तो इसमें क्या होता है, आपको इस तरह से याद रखना है कि डक्टाइल मीटर किसके लिए होता है साहब फेमस, कि वो मोस्टली जो हिस्ट्री ऑफ एलिजिज्म हम पढ़ते हैं तो क्लासिकल मीटर है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं इस पे भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम जब मीटर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मीटर, आई थिंक वी शुड बी मोर अवेयर अबाउट लाइक यू नो व्हाट मीटर्स आर, हाउ मीटर्स आर एसोसिएटेड विद पोइट्री, क्योंकि मीटर के साथ आपके शब्द जुड़े हुए हैं, और शब्द जुड़े हुए हैं भावनाओं से, फीलिंग्स से, है ना, इमोशंस से। थॉट बहुत बात की बात है, पहले फीलिंग्स है पोइट्री में। तो जरा एक बात बताइए, जब कोई रोएगा तो वो रोएगा तो पहले उसकी सांस नहीं बंद हो जाएगी ऐसे ओके। तो जैसे कोई रो रहा है कि जैसे सपोज किसी को कहना है कि weep no more shepherds, weep no more, for Lycidas is dead. Weep no more shepherds, weep no more. तो एक तो है कि weep no more shepherds, weep no more हम बोल दें। एक है कि अगर हम उसको गा के बोले, मीटर में, लिरिक में ढालें उसको, then obviously वो मीटर ऐसा होना चाहिए जिसमें रोने का भाव आ जाए, ऐसा लगे उसको पढ़ करके। इसीलिए यू नो समहाउ पोएट्री इज एसोसिएटेड विद यू नो म्यूजिक ऑल्सो, कि जब अगर हम कोई, जैसे हम क्लासिकल म्यूजिक में, सेमी क्लासिकल में आते ठुमरी गा रहे हैं, और जब हम ठुमरी गा रहे हैं या ठुमरी सीख रहे हैं, तो अगर आपके बोल अलग हैं और टोन जो है आपकी वो सैड है, तो फिर आपका म्यूजिक और आपके वर्ड मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि जो डक्टाइल हेक्सामीटर होता है वो टिपिकली एक ट्रेडिशनल मीटर है जिसमें हम इस तरह की पोएम लिख सकते हैं। जैसे जो शादी का गीत होता है, जैसे 2 औरतें गा रही हैं, ऐसे समझ लो ना, तो उसकी खुशी का इजहार हो जाएगा, डिंग टिक डिंग डिंग टिक टिक, देखो, डिंग, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस। तो वो एक है, और चम्मच बज रहा है ढोलक पे, तो उससे थाप से ही एक नाचने का मन करता है, सोचो। और एक है अलग से शहनाई बज रही है, तो थोड़ी देर बाद रोने का मन करने लगेगा। कोई भंगड़े का गाना चल रहा है तो कोई मतलब कोई बीमारी होगा जो उठ करके नाचने नहीं लगेगा, सोचो। इसका मतलब है मीटर का, शब्दों का, इन सब का बहुत ही फर्क पड़ता है, ठीक है, और वो हमें पता होना चाहिए। फिर मैं लिसिडस की बात ऑलरेडी आपसे कर चुका। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दोज स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर एग्जाम, कि like suppose you study about elegy written in Country Churchyard, then you should also read about what can be the criticism, you know, on that poem, which great critic has said what. Okay, in the same manner Lycidas पे क्वेश्चन आया था, तो वो बड़ा इजी क्वेश्चन था कि भाई डॉक्टर जॉनसन जब अपनी लाइफ ऑफ पोएट्स लिख रहे थे, 52 पोएट्स उन्होंने लिखे हैं उसमें, then you know what comments he had on Lycidas, then you will be surprised. You will be surprised that लिसिडस हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने उसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं उन्होंने क्या लिखा है लिसिडस के बारे में। वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इट इज इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग। उनको लगा कि ये पोएम उस कैटेगरी में फिट नहीं होती है। इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द एफ्यूजन ऑफ रियल पैशन, फॉर पैशन रन्स नॉट आफ्टर रिमोट allusions and obscure opinions. Passion plucks no berries
from the myrtle and ivy, nor calls upon Artheus and Minicius, nor tells of rough satyrs and fawns with cloven heel. Where there is leisure for fiction, there is little grief. अब ये लाइन अपने आप में फेमस है, where there is leisure for fiction, there is little grief. अब कैसे समझाऊं इसको आपको? एक बात बताइए, जब आप लंबी लंबी बात करने लगे तो दुख कहाँ है? वहां पे तो आप बैठ गए कि जो अंदर औरत रो रही है और वो कितनी देर रोएगी जरा बताइए. देयर इज अ लिमिट कि थोड़ी देर बाद उसकी सांस रुक जाएगी. सांस रुकने मतलब मरना नहीं है, रुकने का मतलब है वो गला रुंध जाएगा, शी विल स्टॉप, और फिर वो बात बताने लग जाएगी कि कैसे डेथ हुई, है ना, कैसे डेथ हुई. वो वहां गया था, फिर वो नहा रहा था, मैंने तो मना किया था मत जा, पर वो चला गया, और वो फिर इमोशंस आए, मना किया था मत जा, फिर चला गया. अब मैं तो डिस्क्रिप्शन रुक गया. अब अंदाजा लगाओ, जब डिस्क्रिप्शन रुक गया तो दैट पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर आप वर्ड डाल के, इफ यू आर यू नो अ कारपेंटर, इफ यू आर एन आर्टिस्ट, कारपेंटर ऑफ पोइट्री, ये मत सोचना कि आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो अ कारपेंटर डील्स इन वुड, देन यू कैन यू नो कैन बी अ ग्रेट राइटर. तो आपको मालूम है डॉक्टर जॉनसन जो कि पीएचडी नहीं की हुई थी, उसके बाद भी उनको लोगों ने कहा कि नहीं, तुम पीएचडी की डिग्री लो, तुम इतने महान हो, तुम्हारे कमेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं. तो उन्होंने और ये बात सच भी है बच्चों. कई बार आप देखते हो आजकल तो खैर ट्रोलिंग का फैशन है. एवरी टॉम डिक एंड हैरी हु डजंट हैव एनी ओपिनियन यू नो इज वेरी रेडी यू नो विद द प्लैकार्ड कि मेरी ओपिनियन लो, मेरी ओपिनियन लो. बट एक्चुअल में ओपिनियन मैटर करती है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनकी, और पढ़े लिखे लोग अपने ओपिनियन यूज नहीं देते फिरते. तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि डॉक्टर जॉनसन ने बिल्कुल सही लिखा है. आई पर्सनली फील कि अगर क्योंकि बड़ा लर्नड था, आपको मालूम है मिल्टन बहुत लर्नड थे, 8 भाषाएं तो उनको कंठस्थ थी, ठीक है, 8 भाषाओं में वो बात कर सकते थे. मैं उनको इंपॉर्टेंट इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहा, वहां पे हमने उर्दू की स्टार्टिंग की सीखने की. पंजाब आया तो पंजाबी लिटरेचर था मेरे पास, यू नो, चाहे मैं कॉन्वेंट में पढ़ा लेकिन पंजाबी लिटरेचर वॉज अ कंपल्सरी थर्ड लैंग्वेज. हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, मारवाड़ी में हुई, पंजाबी मुझे बोलना आता है तो और मराठी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो मराठी थे, तो मराठी में मेरी अपनी एक अलग एक एस्थेटिक इंटरेस्ट है. तो जब 4-5 लैंग्वेजेस और संस्कृत में मेरे 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100 जब मैं 10th में था, तो मेरा भाषाओं में दखल इंटरेस्ट की वजह से ज्यादा है. बाकी हिंदी हम बोलते हैं, इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, बौद्धिक भाषा इंग्लिश है. अगर आप मान लीजिए मेरे किसी चोट लग जाए तो मेरे मुंह से तुरंत जोर से निकलेगा रब्बा रे, जोर से मारवाड़ी निकलेगी. ओके, सो आई ड्रीम इन मारवाड़ी यू नो, बट इंटेलेक्चुअली आई राइट इन इंग्लिश. ओके, आई कैन वेल एक्सप्लेन इन इंग्लिश. तो मैं मेरे जो हाई वोकेबलरी वो इंग्लिश की है. हिंदी मेरी उतनी सॉलिड नहीं है क्योंकि मैं लेक्चर देने से पहले सोच रहा था कि मैं आपको हिंदी लिटरेचर में जो एलिजीज फेमस है उनके बारे में भी बताऊं. तो लेकिन मैंने देखा कि हिंदी लिटरेचर में मुझे एक ज्ञानवाणी पे एक लेक्चर मैंने सुना था जिसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद निराला जी की बिटिया की डेथ के ऊपर या पंत जी की बिटिया की डेथ के ऊपर उन्होंने शायद दहेज से जला दी गई थी, तब एक ललिता नाम की कोई शायद एलिजी लिखी हुई है. एलिजी की बात आती है तो मैं एक और आपको अपने मन की बात बताता हूं कि जब सीता जी का हरण हो जाता है तो किस तरह से राम व्याकुल होकर के और वन वन भटकते हुए, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, मतलब उसको पढ़ के आपको रोना आ जाता है. ओके, और जब आप अशोक वाटिका में सीता और हनुमान जी का संवाद सुनते हो, है ना, हरऊ नाथ मम संकट भारी, आपको नहीं लगता हॉरिपिलेशन, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू निकलने लगते हैं जब हम सीता जी की ये बात सुनते हैं कि हरऊ नाथ मम संकट भारी, ठीक है, या जब वो चूड़ामणि देती हैं. तो ऐसे बहुत सारे एलिजी का मतलब फिर से मैं कह दूं, इट्स जस्ट अ लेमेंट. ओके, लेटर ऑन इट वाज एसोसिएटेड विद डेथ, लेकिन देयर आर सम वर्ड्स लाइक मोनोडी, थ्रैनोडी एंड डर्ज, ये डेथ से रिलेटेड वर्ड्स हैं. तो लाइफ ऑफ मिल्टन जब डॉक्टर जॉनसन ने लिखा तो उन्होंने बिल्कुल तारीफ नहीं की. उन्होंने कहा कि इतने रेफरेंसेस दे दिए तो दुख कहां है. ओके, तो इसका मतलब है वाकई वो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट ज्यादा है, इसकी वजह से वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जेन्युइन इमोशंस नहीं है. तो ये अब आपको आजकल ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन वो नेट में पूछने लगे हैं, इसलिए मैं थोड़ा इस पर जोर दे रहा हूं. ओके, आगे मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारी पोएम्स हैं, बहुत सारी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं. मैं एडोनिस पे बात करना चाहता हूं, मैं थायरसिस पे बात करना चाहता हूं, लेकिन टाइम की कमी आप सबके पास भी है और मेरे पास भी है. तो इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूं और मैं लास्ट में फिर से ये कहना चाहूंगा कि मैं रेगुलर आना स्टार्ट कर दूंगा फिर से फेसबुक पे, और जिन स्टूडेंट्स को
सिस्टमेटिक स्टडी करनी है और वाकई JRF क्लियर करना है, दे कैन टेक एडमिशन इन माई इंस्टीट्यूट। और मैं उनको लाइव आजकल जूम और गूगल पे पढ़ा रहा हूं। जितने भी बच्चे डेली एडमिशन हो रहे हैं, मुझे सेकंड बैच स्टार्ट करना है, थर्ड बैच स्टार्ट करना है अब। और स्टडी मटेरियल मैं बहुत मेहनत से बना करके देता हूं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल के ऊपर मुझे फेसबुक पे आना पड़ा। देन डू टीच इन हिंदी। देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैं इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हूं तो हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर को अगर मान लीजिए हिंटरलैंड के स्टूडेंट्स सुने एंड दे डाइवर्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स इंग्लिश, उनको समझ ही नहीं आता है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं उनकी हेल्प करने के लिए इंग्लिश में बोल रहा हूं। ओके, एंड यू आर ओपन टू क्रिटिसाइज मी एज आई हैव सेड दैट विदाउट knowing somebody's point of view, without knowing the situation and condition, you must have seen me speaking during the lecture in English. It means you can't blame me that I don't know English. Clear? But if I'm speaking Hindi, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये decolonization मेरा बहुत पहले हो चुका है, 20 साल पहले when I started my career, कि there was a girl who was sitting in my class and the moment somebody asked me like can you explain it in Hindi, and I started and some girl said Hindi in English class, then that girl who coincidentally had been there in France, she said, sir, no problem, in France there in universities teachers speak French language when they explain English. तो बंगाली बच्चे पढ़ रहे हैं और बीच में बंगाली में केरला गया था, इतने बड़े सेमिनार में पीपल वर टेकिंग रिकॉर्ड्स टू मलयालम अगेन एंड अगेन. So what's wrong? Come on. If I can approach to the Hindi medium students and I can give a better understanding of things, they can make them think, I think. Then I think there is nothing wrong in that. Clear? तो मैं नाराज भी नहीं हो रहा हूँ, मैं नाराज भी हो जाता हूँ कई बार, लेकिन मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ आपके क्वेश्चन पे. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कंपैशन भी मेरा एक गहना होना चाहिए कि जब मैं टीचर हूँ और सपोज आई फील लाइक somebody is unable to understand, I should come down to their level. And down भी नहीं बोलूंगा, I should up my level and go to Hindi. Hindi is my mother tongue and I can well express myself in Hindi and those students can understand. So क्यों ना हम दूसरों के लिटरेचर को अपनी लैंग्वेज में समझ करके और उनको अप्रिशिएट कर सकें. And in between the class I already have talked about how to improve your vocabulary and all. Okay, so जो मेच्योर है वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं मेरे लेक्चर को, जो मेच्योर नहीं है वो मैंने कहा ना साइलेंटली पेशेंटली देखें सुने and start improving being a human being. Come on. Okay, thank you so much. शेयर जरूर करें प्लीज इसे.